السلام علیکم دوستو، ٹیسٹ نمبر 64 کے ساتھ جمشید بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، کومو دیبیرا سیر لا ڈسٹانسیا، کس طرح ہوگا فاصلہ de detención رکنے کا، con relación اس کے ساتھ تعلق کرتے ہوئے la distancia a la que se encuentra un obstáculo، ایک جو رکاوٹ آپ سامنے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ریلیشن کرتے ہوئے، اس کا تعلق کرتے ہوئے، تو یہ کیسے ہوگا ڈسٹانسیا دے ڈیٹینسیون، یعنی کہ رکنے کا جو فاصلہ ہے وہ کس طرح کا ہوگا اس کے ساتھ تعلق کرتے ہوئے، جبکہ کوئی آپ کے سامنے ایسی رکاوٹ موجود ہے۔ تو اس وقت مایور ہوگا یعنی کہ زیادہ، مینور کم ہوگا، یا ایگوال سیم ہوگا۔ تو اس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے ڈسٹانسیا دے ڈیٹینسیون، رکنے کا فاصلہ، آپ نے جہاں سے اس خطرے کو دیکھا اس کے گاڑی کے رکنے تک کا فاصلہ جو ہے وہ ڈسٹانسیا دے ڈیٹینسیون کہلاتا ہے۔ تو ڈسٹانسیا دے ڈیٹینسیون اس وقت جب آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے، یعنی کہ یہاں پر رکاوٹ ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ ڈسٹانسیا مینور ہوگا، کم ہوگا، یا زیادہ ہوگا، یا سیم ہوگا۔ اگر سیم ہوگا، یہاں پر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ گاڑی اس سے ٹکرا جائے گی اگر سیم ہوگا، یعنی کہ یہ رکاوٹ اس کے آگے ہے۔ اگر یہاں پر رکاوٹ ہے تو اس کے ساتھ ٹکرا جائے گی۔ اگر اس سے کم ہوگا یعنی کہ اس سے پہلے رک جائے گا تو یہ گاڑی ٹکرائے گی نہیں۔ اگر سیم ہوگا تب بھی ٹکرا جائے گی، اگر زیادہ ہوگا تب بھی ٹکرا کے آگے نکل جائے گی۔ تو یہاں پر یہی چیز ہے کہ یہاں پر ڈسٹانسیا جب اس کے ساتھ تعلق کیا جائے گا، کوئی سامنے آپ کے رکاوٹ ہے، تو اس وقت ڈسٹانسیا ڈیٹینسیون، رکنے کا فاصلہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے گاڑی کو جلدی روکنا ہے، تو اس لیے مینور اس کا جواب ہوگا۔ آگے آتے ہیں، los agentes de autoridad personal de obras، وہ جو ہے اخینتے de autoridad جنہیں اتھرائزڈ ہے پرسونال de obra، جو کنسٹرکشن والے ہیں، یہ جو اوبرے کا کام کرتے ہیں، están obligados انہیں ضروری ہے a utilizar استعمال کرنا dispositivos آلات جو ہیں ریٹروفلیکانتس یعنی کہ جو چمکتے ہیں، ایسی جیکٹ وغیرہ پہننا جن کے جو ہے لائٹ پڑنے سے چمک پیدا ہو، کہ permiten distinguirlos a una distancia mínima de 150 metros، کہ جو 150 میٹر سے آپ کو جو ہے اس میں دکھائی دے سکے، 150 میٹر سے اس میں وہ چمک دکھائی دے سکے، وہ دور سے دکھائی دے سکے 150 میٹر سے۔ تو یہ کیا ضروری ہے؟ اس میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، están obligados a utilizar dispositivos retroflejantes، تو اس میں پہلا جواب ہے سی سمپلی، جی ہاں ہمیشہ ضروری ہے۔ دوسرے میں کہہ رہا ہے سی جی ہاں pero solo de noche، صرف جو رات کو ضروری ہے۔ آخر میں لکھ رہا ہے نو نہیں ضروری۔ تو اس میں یہ دن ہو یا رات ہو، اوبرے والے کو یہ چیز جو ہے پہن کر جو ہے سڑک پر آنا ضروری ہوگا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ سی سمپرے، ہمیشہ یہ جو ہے اس کو پہننا ہے آپ نے۔ آگے آتے ہیں، se podrá efectuar un cambio de sentido، کہ یہاں پر آپ جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں، کامبیو ہوتا ہے تبدیل کرنا، سینتیدو اپنی سمت کو، یعنی کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں اس کے مخالف واپس آنا، اسے کہتے ہیں یو ٹرن، کامبیو دے سینتیدو۔ en la intersección así señalizada، انٹرسیکشن ایسا چرایا جس میں یہ نشان موجود ہو۔ اب اس نشان کی طرف دیکھا جائے، یہ نشان کیا ہے اور ہمیں یہ کیا بتا رہا ہے، تو اس کے مطابق آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پر یو ٹرن آپ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ تو اس میں ایک جواب ہے سی، دوسرا ہے نو، یا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ یہ یہاں پر یہ جو گول نشان ہے اور نیلا ہے، اس کا مطلب ہے اوبلیگاسیون، یعنی کہ ضروری ہے۔ آپ کو کیا ضروری ہے؟ ان دو تیروں سے آپ کو واضح کر رہا ہے، یا آپ سامنے جا سکتے ہیں یا آپ یہاں پر اسکیردہ کی جانب جا سکتے ہیں، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر اور کوئی آپشن چوز نہیں کر سکتے، یہ ضروری ہے کہ آپ سامنے جائیں یا اسکیردہ جائیں۔ تو یہاں پر لفظ آ رہا ہے کامبیو دے سینتیدو، کہ یہاں پر کیا آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ہم یو ٹرن نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ ہمیں ضروری کر رہا ہے کہ یہاں آپ سامنے جا سکتے ہیں یا آپ اسکیردہ کی جانب جا سکتے ہیں۔ آگے آتا ہے استا سینیال، یہ جو سگنل ہے، سینیفیکا انٹروالو، یہ جو ہے یہ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو نیچے اوپر سپیڈ لکھی ہوئی ہے 70 سے 90 تک، تو اس سگنل کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں پہلا ہے aconsejado de velocidades، یہ آپ کو صلاح دی جا رہی ہے سپیڈ کی
aunque las condiciones حالانکہ جو حالات ہیں sean desfavorables وہ ٹھیک نہیں ہے. حالات مطلب یہاں پر موسم ٹریفک کے مطابق نہیں ہے. آگے لکھتا ہے aconsejado de velocidades کہ یہ صلاح ہے آپ کو سپیڈ کی siempre que las condiciones sean favorables یہ اس وقت آپ کو صلاح دی جاتی ہے جب جو ہے حالات ٹھیک ہو, کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو, وہاں پر بارش نہیں ہو رہی, ٹریفک زیادہ نہیں ہے, تو اس میں آپ نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے. آخر میں لکھ رہا ہے obligatorio ضروری ہے de velocidades اس سپیڈ پر siempre que las condiciones sean favorables جب جو ہے حالات ٹھیک ہوں گے, موسم ٹھیک ہوگا, چیزیں ٹھیک ہوں گی, تو اس وقت آپ کو ضروری ہے یہاں پر اس سپیڈ پر چلنا. تو ایک چیز واضح رہے, جو بھی نیلا نشان اور گول ہوگا اس کا مقصد ہے ضروری, لیکن یہ جو چورس نیلے نشان ہیں ان کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو صلاح دی جا رہی ہے. تو یہ صلاح کس وقت ہوگی؟ جب sean favorable condiciones جب کنڈیشن جو ہے مطلب اگر بارش ہو رہی ہے, وہاں پر برف پڑی ہوئی ہے, تو آپ کو یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ 70 سے 90 ہے, لیکن یہاں پر انڈیکیٹ نہیں کیا جا رہا نیچے یا بارش یا اس صورتحال میں آپ کو 70 یا 90, یہ نارمل صورتحال میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 70 یا 90 کی سپیڈ میں آپ نے رہنا ہے, یہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگا. تو اگر اس صورتحال میں وہاں پر برف پڑی ہوئی ہے یا بارش ہو رہی ہے تو اس وقت آپ اس سپیڈ پر جائیں گے تو یہ بھی حالات کے مطابق نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ siempre que condiciones sean favorables جب جو ہے حالات وہاں پر ٹھیک ہوں گے, مطلب ٹریفک جام نہیں ہے, ٹریفک کے مطابق نارمل ہے سب, تو اس وقت یہ جو ہے آپ کو صلاح دی جا رہی ہے aconsejado velocidad. یہ جو ہے نا sean desfavorables یہاں پر اب آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا, کیونکہ وہاں پر حالات جو ہیں موسم کے بھی ہو سکتے ہیں, ٹریفک کے بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کے مطابق اگر آپ نے چلنا ہوگا. آخر میں یہ جو کہہ رہا ہے اوبلیگاتوریو, تو یہ چیز یہاں پر ٹوٹلی طور پر غلط ہے, کیونکہ اوبلیگاتوریو کے لیے نشان جو ہے وہ گول ہوگا. ان ان توریزمو ایک جو گاڑی والا ہے پارا سنکو پلاساز جس میں 5 سیٹیں موجود ہیں, انکلوڈو ایل کنڈکٹور ڈرائیور سمیت. Está permitido اس چیز کی اجازت ہے کہ viajan 6 personas کیا اس چیز کی اجازت ہے کہ جس میں 5 سیٹیں نصب ہیں اس میں 6 بندے جو ہے وہ سفر کر سکیں, تو اس چیز کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو آگے جواب میں لکھتا ہے, پہلے میں ہے نو نہیں اجازت, porque no se puede sobrepasar el número de plaza autorizada. آپ کو جو اتھرائزڈ ہیں وہاں پر جتنی سیٹیں موجود ہیں اس سے آپ جو ہے آگے نہیں جا سکتے, اس سے زیادہ بندے نہیں بٹھا سکتے. تو اس میں کہہ رہا ہے سی cuando no se supera la masa máxima autorizada del vehículo اگر وہ ماسا ماکسیما سے زیادہ نہیں جاتا تو آپ جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. آخر میں لکھتا ہے سی cuando el vehículo circula en vías urbanas جب گاڑی جو ہے ویا اربانا یعنی کہ شہر کی سڑکوں پر چل رہی ہو تو اس وقت آپ لے کے جا سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے جتنی سیٹیں موجود ہیں گاڑی میں اس سے زیادہ آپ اس میں نہیں بٹھا سکتے, اتنے ہی بیٹھ سکتے ہیں. یہاں پر ڈرائیور سمیت کی بات ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے یہاں پر اس کا ہوگا نو, ہم نہیں بیٹھ سکتے وہاں پر. Está permitido 6 personas تو یہاں پر 5 سیٹیں ہیں تو 6 آدمی نہیں بیٹھیں گے, اس کا جواب ہوگا نو, porque no se puede sobrepasar el número de plazas autorizadas. تو اس میں جواب ہوگا یہ. ماسا ماکسیما کی ایک میں ویڈیو بناؤں گا جس سے آپ کو مکمل پتہ چل جائے گا کہ ماسا ماکسیما autorizada کس کو کہتے ہیں, اس پر ایک میں مکمل ویڈیو بنا کر آپ کو سینڈ کر دوں گا. اس کے علاوہ یہ جو ڈسٹنسیا کا یہاں پر اوپر ذکر ہوا ہے اس کی بھی میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, تو اس کو آپ دیکھ کے صحیح طرح جانچ سکتے ہیں کہ ڈسٹنسیا دے ڈیٹینسیون کسے کہتے ہیں, یا ریاکسیون یا فرینادو. تو یہاں پر اس کا میں لنک رکھ دوں گا, آئی کا نشان آئے گا تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آگے آتے ہیں جناب, conducir con sueño نیند کے ساتھ جو ہے ڈرائیو کرنا, porque es peligro کیوں یہ خطرناک ہے. تو نیند کے ساتھ ڈرائیو کرنا کیوں خطرناک ہے, اس میں پہلا جواب ہے porque se pierde capacidad de reacción کہ اس کے ساتھ جو ہے کیپیسٹی آپ کی جو طاقت ہے رد عمل کی, عمل کرنے کی, یعنی کہ بریک لگانے کی, ٹرن کرنے کی, تو وہ کم ہو جاتی ہے جو ہے اس سے. دوسرے میں لکھتا ہے porque se circula más despacio کیونکہ اس کے ساتھ آپ جو ہے زیادہ آہستہ چلتے ہیں تو یہ اس لیے خطرناک ہے. آخر میں لکھتا ہے porque el viaja dura más کیونکہ یہ زیادہ ٹائم جو ہے لگتا ہے منزل پر پہنچنے کے لیے. تو اس میں
porque es peligro जवाब इसका होगा porque se pierde capacidad, क्योंकि आपकी कैपेसिटी जो है वो ताकत जो है नींद की हालत में उतनी नहीं होगी, आप सुस्त पड़े हुए होंगे, तो रिएक्शन जो है रद्द अमल जो है आप लेट करेंगे। तो इसमें porque se pierde capacidad de reacción इसका जवाब होगा। Los accidentes más frecuentes, जो ज़्यादा बार बार एक्सीडेंट होते हैं इन पोब्लादो शहर के अंदर, सोन debidos a, वो किस वजह से ज़्यादा जो है एक्सीडेंट होते हैं? एल वहीकुलो गाड़ी की वजह से, लाविया रास्ते की वजह से, एल कंडक्टर या ड्राइवर की वजह से। तो जितने भी ट्रैफिक में हादसात होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है हादसात की वो ड्राइवर की वजह से हादसात होते हैं, यानी कि ड्राइवर की गलती की वजह से। इसके अलावा रास्ते के ख़राब होने से भी हादसात होते हैं, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत जो है वो कम है। इसके अलावा गाड़ी के ख़राब होने की वजह से भी हादसात होते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो हादसात होते हैं, सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो ड्राइवर की गलती की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर किसको हम रखेंगे? कंडक्टर को। एल कंडक्टर ड्राइवर की वजह से मास फ्रिक्वेंटे, जो ज़्यादा बार बार एक्सीडेंट होते हैं वो ड्राइवर की वजह से होते हैं। Esta señal, ये जो सिग्नल है इंडिका आपको इंडिकेट कर रहा है प्रोक्सीमिदाद दे, ये किस चीज़ की आपको इंडिकेट कर रहा है कि आगे क्या आने वाला है। तो ये आपको आपने यहाँ पर देख लेना। इसमें पहला है ऊना कुरवा, एक जो मोड़ है यहाँ पर पेलीग्रोसा खतरे वाला, आसिया ला इस्केर्दा बाएं जानब। तो बाएं जानब ये कह रहा है एक मोड़ है यहाँ पर वो ख़तरनाक है। दूसरे में कह रहा है ऊना सेक्शन दे कुर्बाज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोड़ हैं, पेलीग्रोसाज ख़तरनाक, ला प्रीमेरा जो पहला है अला इस्केर्दा बाएं जानब है। तो आखिर में लिख रहा है दोस कुर्बाज पेलीग्रोसा, यहाँ पर दो ख़तरनाक जो हैं मोड़ हैं seguidas आगे आने वाले। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी है कि जब भी ये सिग्नल आएगा इसका मतलब है यहाँ आगे बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक मोड़ हैं। तो इसमें ये जो पहला टर्न होगा यहाँ पर बाएं जानब है, तो इसमें पहला लिखा जाता है कि पहला जो है आपका बाएं जानब टर्न आ रहा है। तो इसमें आपने ये देखना है ऊना सेक्शन दे कुर्वा पेलिग्रोसास कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ है और इसमें पहला जो है वो बाएं जानब मुड़ रहा है। तो इसमें पहला ये जो लिखा हुआ है ऊना कुर्बा, तो यहाँ पर एक मोड़ का जिक्र नहीं हो रहा, एक मोड़ के लिए एक ही सिर्फ तीर ऐसे टर्न कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। आखिर में ये जो लिखा है दो कुर्बास, तो यहाँ पर दो भी नहीं होगा क्योंकि ये तादाद यहाँ पर नहीं बताई जा रही, इसलिए यहाँ पर यही जवाब इसका दुरुस्त होगा कि उना सेक्शन दे कुर्बास की यहाँ बहुत ज़्यादा मोड़ हैं पेलिग्रोसास खतरे वाले, जिनमें पहला जो है बाएं जानब मुड़ने जा रहा है। अल अदेलंतर अल कामियोन, इस जो ट्रक है इसको ओवरटेक करने के लिए दिलाई माखिन जो तस्वीर में बताया जा रहा है तेंद्रे इन क्वेंता, आपके ज़हन में क्या होना चाहिए? तो इस ट्रक को गौर से आपने देखना है कि इसको आपने ओवरटेक करना है, तो इसमें आपने ज़हन में क्या चीज़ रखनी है। तो इसमें पहला लिख रहा है कि सुमासा autorizada es superior a 3.500 किलोग्रामोस, कि इसका जो वज़न है वो 3,500 किलोग्राम से ज़्यादा है। दूसरे में लिखा है कि मीडे मास दे 2,50 metro de altura, कि ये इसका जो ऊंचाई है वो 2.50 मीटर से ज़्यादा है। आखिर में लिखता है कि मीडे मास दे 12 metro de longitud, के ये 12 मीटर से लंबा है। तो यहाँ पर आपने देखना है जिस भी ट्रक, बस या किसी भी बड़ी गाड़ी के पीछे जब ये पीली पट्टी लगी होगी, चाहे वो दो छोटी छोटी पट्टियाँ हों चाहे एक बड़ी पट्टी हो, तो इसका मतलब होगा कि ये गाड़ी जो है ये 12 मीटर से लंबी है। जिस तरह की यहाँ पर तस्वीर में आपको ये एक बस नज़र आ रही है, तो इसमें ये छोटी दो पट्टियाँ लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ये 12 मीटर से लंबी है। ये इसलिए आपको बताया जाता है ताकि आपको ओवरटेक करते वक्त पता हो कि ये एक लंबी गाड़ी है और इसके लिए आपको कितने फासले की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा कि मीदे मास दे 12 metro de longitud, के लंबाई में ये 12 मीटर जो है उससे ज़्यादा लंबी है। ये जो चीज़ है कि 2.50 मीटर से ऊंची है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। और इसके अलावा ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है कि इसका वज़न जो है वो 3,500 किलोग्राम से ज़्यादा है। मुचोस आत्रोपेयोस आपियातोनेस, जो पैदल चलने वाले हैं उनके साथ जो टक्कर है से प्रोड्यूसन कहाँ पर होती है, कैसे होती है? दुरांते ला नोचे, रात को होती है। cuando los vehículos circulan marcha atrás, जब गाड़ी जो है रिवर्स आप करते हैं तो उस वक्त होती है। इन autopistas, जो
ऑटोपिस्ता है, मोटरवे है, उस पे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपने चीज़ एक तो देखनी है, यहाँ पर जिक्र हो रहा है atropellos peatones, peatones यानी कि पैदल चलने वाले बंदों का जिक्र हो रहा है। durante la noche, तो रात के वक्त आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पर जिक्र हो रहा है mucho, ज़्यादा। तो ज़्यादा बंदे दिन को होते हैं या रात को होते हैं? दिन को होते हैं। तो यहाँ पर नोचे का भी जिक्र गलत हो जाता है। और दूसरा ये जो लिखा हुआ है इन ऑटोपिस्ता, तो ऑटोपिस्ता पर पैदल चलने वालों को इजाज़त ही नहीं है दाखिल होने की, तो इस लिहाज से ये भी चीज़ गलत हो जाती है। तो जब दो चीज़ें यहाँ पर गलत हो जाएं, तीसरा जवाब इसका दुरुस्त होगा। तो तीसरे में क्या लिखा है, cuando los vehículos circulan मार्चा अतरास, यानी कि ज़्यादातर जो टक्कर होती है पैदल चलने वालों से तो वो यही होती है कि जब गाड़ी को रिवर्स किया जाता है, क्योंकि आगे की तरफ तो आपको वाज़े नज़र आ रहा होता है और पीछे आपको ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा होता, तो इससे ज़्यादातर जो टक्कर होती है वो प्यातोन के साथ रिवर्स करते हुए होती है। तो इसमें ये cuando los vehículos circulan marcha atrás, जब वापस आप रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी को उस वक्त होगी। A la vista de la señal, इस सिग्नल को देखते हुए y teniendo en cuenta, और ज़हन में रखते हुए कि circulamos a 90 किलोमीटर पर hora, कि हम 90 की स्पीड पर जो है वो चल रहे हैं। podremos utilizar, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं el carril derecho, जो दाएं जानब वाली सड़क है, उसको यहाँ पर क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं कर सकते, porque está reservado para vehículos lentos, कि ये जो है मखसूस की गई है जो आहिस्ता गाड़ियाँ चलती हैं उनके लिए। दूसरे में लिख रहा है सी, जी हाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं como norma general usaremos el derecho, जैसा कि नॉर्मली कानून है कि हम दाएं जानब चलें तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में लिखता है usaremos cualquier carril, हम किसी भी सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिस्टिंक्टamente आज़ादाना तौर पर। तो यहाँ पर आज़ादाना तौर पर वो कह रहा है किसी भी कारिल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है एक तो 90 की स्पीड का, दूसरा पूछ रहा है कि podemos utilizar el carril derecho, तो हम दाएं जानब की सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली कानून के मुताबिक हमें हमेशा जो है वो दाएं जानब चलना होगा। यहाँ पर सिग्नल में एक जो चीज़ है ये आपको 70 की स्पीड दिखाई दे रही है, तो लोग समझते हैं क्योंकि यहाँ पर 70 की स्पीड है तो 90 की स्पीड यहाँ पर ही चलना होगा, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर वो कह रहा है आपने 70 की स्पीड होनी चाहिए इस कारिल पर जाने के लिए। इससे ऊपर होगी तो वो ठीक होगा, अगर इससे नीचे है तो वहाँ आप नहीं चल सकते। लेकिन कारिल दरेचो पर ना तो किसी चीज़ का मना किया गया है कि यहाँ से इससे कम स्पीड वाले गुजरें या इससे ज़्यादा स्पीड वाले गुजरें, तो यहाँ पर कोई ना तो मना है ना ऑब्लिगेशन है। तो नॉर्मली हम 90 की स्पीड पर हों या 50 की हों या 60 की हों तो इस पर हम यहाँ पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ को यहाँ पर मना नहीं किया गया और नॉर्मली कानून के मुताबिक हमें पहले दाएं जानब चलना होगा। अगर ये सड़क मसरूफ़ है और आपने इस पर आना है तो इस पर आने के लिए अब आपको ज़रूरी होगा कि आपकी स्पीड जो है वो 70 से ज़्यादा हो। तो लिहाजा यहाँ पर 90 की स्पीड में हम जो है दाएं जानब चलेंगे। तो इसमें होगा सी, हम चल सकते हैं como norma general usaremos el derecho, हम दाएं जानब वाली कारिल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कह रहा है कि नो नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है। आगे कह रहा है कि ये आहिस्ता गाड़ी जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए है, तो यहाँ पर कोई ऐसा निशान मौजूद नहीं है। आखिर में ये जो लिख रहा है usaremos cualquier carril, किसी भी जो है सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी कानून के मुताबिक गलत होगा क्योंकि आपको हमेशा दाएं जानब चलना है। अगर वो सड़क मसरूफ़ है तो उस सूरत हाल में आप दूसरी सड़कों को या ओवरटेक कर लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे आते हैं este vía urbana, इस जो रास्ता है शहर का con dos carril para cada sentido, इसमें दो जो हैं वो सड़कें हैं cada sentido से मुराद दोनों तरफ जाने वाली, यानी कि एक तरफ जाने वाली दो सड़कें और दो आने वाली हैं। तो इसमें कि नो tiene líneas, यहाँ पर लाइनें नहीं लगी हुई de separación जो इसको तकसीम करें de los carriles, इन सड़कों को। por qué carril से debe circular, तो यहाँ पर हमें किस सड़क पर चलना होगा? इसमें पहला जवाब है por el carril de la derecha, आपको दाएं जानब चलना होगा। y no puede cambiar al segundo, आप दूसरी सड़क पर नहीं आ सकते। दूसरे में कह रहा है por el carril derecha, आपको दाएं जानब चलना होगा। y puedo circular, और आप चल सकते हैं por el segundo carril, दूसरी सड़क में para adelantar, ओवरटेक के लिए। तो आखिर में लिखता है por el carril que más convenga
para mi destino, उस सड़क पर हम चलेंगे जो मेरी मंजिल के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। तो यहाँ पर आपने चीज़ ये देखनी है कि शहर के अंदर हम उस सड़क पर चल सकते हैं जो हमारी मंजिल के लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वहाँ पर सड़क में लाइनें लगी हों। अगर लाइनें सड़क पर मौजूद नहीं हैं तो उस सूरत हाल में हम दाएं जानब चलेंगे, चाहे दो ही सड़कें जाने वाली हैं और दो ही आने वाली हैं। हम दूसरी सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरटेक के लिए, या ट्रैफिक की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर यश बढ़ जाता है तो दूसरी सड़क को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कानूनन हमें दरेचा दाएं जानब चलना होगा। तो इसमें पहला भी ये लिखा है कि दाएं जानब चलना होगा, लेकिन यहाँ पर आगे जो लिख रहा है नो पुede cambiar al segundo, कि आप दूसरी में नहीं आ सकते, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। दूसरे में भी लिख रहा है आप दाएं जानब चलते हैं, लेकिन आगे ये जो लिख रहा है puede circular por el segundo, कि आप दूसरी कारल में चल सकते हैं para adelantar ओवरटेक के लिए, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में ये जो लिख रहा है por el carril más convenga mi destino, ये इस वक्त यहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर no tiene línea separación de los carriles, कि यहाँ पर मौजूद लाइनें नहीं हैं, तो लिहाजा इसको हम नहीं चूज़ करेंगे। आगे आते हैं उन कंडक्टर, एक जो ड्राइवर है नोवेल नया, a qué está obligado, उसे क्या ज़रूरी है। पहला लिख रहा है a llevar visible, उसको लेके जाना होगा जो दिखता हो, en el parte posterior, बैक आपके पीछे जानब, izquierda बाएं जानब, la placa L, जिसका एल प्लेट जो है वो लगी हो आपके पीछे बाएं जानब। दूसरे में लिखता है a no circular más de 80 किलोमीटर पर हora, कि वो 80 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड पर नहीं चल सकता। आखिर में लिखता है a no circular más de 100 किलोमीटर पर hora, वो 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकता। इन ऑटोविया ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पर वो 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकता। तो इसमें जो नया ड्राइवर है उसके लिए ज़रूरी यही है कि वो एल की प्लेट जो है पीछे लगा के जाए। तो यहाँ पर उसको स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, स्पीड वो कारिल के मुताबिक, सड़क के मुताबिक दे सकता है और दूसरे ड्राइवरों के हिसाब से नॉर्मल है। ये नए ड्राइवर के लिए स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, वो दूसरे की तरह सेम ही है। तो लिहाजा यहाँ पर इसका होगा कि आपने एल प्लेट लगा के पीछे जाना है। आगे आते हैं सिबा adelantar el vehículo, अगर आप जो है ओवरटेक करने जा रहे हैं एल वेहिकुलो, और जो गाड़ी है कि circula adelante आपके सामने जा रही है, ha encendido el intermitente izquierdo, उसने बाएं जानब का इंडिकेटर जो है वो ऑन कर दिया है, manifestando su intención de adelantar, वो बताना चाह रहा है कि वो ओवरटेक करने जा रहा है। किन tiene preferencia, यहाँ पर किसको यहाँ पर तरजीह होगी en el adelantamiento, ओवरटेक करते वक्त। तो इसमें ये कह रहा है कि आप ओवरटेक करने जा रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो गाड़ी है उसने इंडिकेटर ऑन कर दिया है, वो बता रहा है आपको कि वो ओवरटेक करने जा रहा है। तो उस वक्त क्या होगा, किसको प्रेफरेंसिया होगा, किसको तरजीह होगी, यानी कि पहले कौन ओवरटेक करेगा। तो इसमें पहला जवाब जो है एल के इनिशिए अंतेस, जो पहले शुरू करेगा, एल desplazamiento lateral, साइड पर होना, यानी कि जो पहले मूवमेंट शुरू करेगा उसे जो है पहल होगी। दूसरे में लिखा है एल के circula a mayor velocidad, जो ज़्यादा स्पीड के साथ चल रहा होगा उसे यहाँ पर पहल होगी। आखिर में लिखता है el conductor del vehículo, वो ड्राइवर गाड़ी का, que haya encendido el intermitente, जिसने इंडिकेटर यहाँ पर ऑन की हुई है, यानी कि यहाँ पर आगे वाले का जिक्र हो रहा है कि circula adelante encendido intermitente, जिसने आगे आपको इंडिकेटर ऑन कर दिया। तो इसमें कानून के मुताबिक आपने ये देखना है कि जो सामने आपके गाड़ी जा रही है, आपने इंडिकेटर जला दिया, उसने भी जला दिया, तो उस वक्त उसको पहल होगी क्योंकि वो आपके सामने है। हाँ, अगर उसने इंडिकेटर जलाई हुई है लेकिन वो टर्न नहीं ले रहा, एक जो है आप वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो उस वक्त आपने उसको जो है लाइट के साथ या हरन के साथ बताना है कि क्या आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। तो उस वक्त वो अपनी इंडिकेटर बंद करता है या आप ओवरटेक कर जाते हैं, लेकिन पहल उसे होगी क्योंकि वो आपके आगे है। लेकिन अगर आपने ओवरटेक शुरू कर दिया और उसके बाद उसने इंडिकेटर दी है, आप दूसरी कारिल में आ चुके हैं, तो उस सूरत हाल में अब आपको तरजीह होगी, आप जो है वो पहले ओवरटेक करेंगे। तो इसमें आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर वो इसने वाज़ेह तौर पर बताया है कि जो आपके सामने जा रहा है उसने लाइट ऑन कर दी है,
اسکردو والی، تو اس اب کس کو جو ہے وہ پہل ہوگی، تو اب اسی کو پہل ہوگی کیونکہ وہ آپ کے سامنے جا رہا ہے. تو یہاں پر یہی ہوگا el conductor del vehículo que haya encendido el intermitente، تو اس کو وہاں پر یہاں پر ترجیح ہوگی، وہ پہلے اوورٹیک کرے گا. کہ significa esta señal، یہ جو سگنل ہے یہ آپ کو کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے، تو یہ ایک پل ہے جو کھل جاتا ہے، تو یہی آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو اس میں پہلا لکھتا ہے پاسو نیول کون بارریرا، کہ یہ ایک پاسو نیول ہے یعنی کہ ریل پٹری ہے جس پر پھاٹک لگا ہوا ہے. تو اس میں کہہ رہا ہے پوئنتے موول کہتے ہیں وہ پل جو کھل جاتا ہے. آخر میں کہہ رہا ہے دس نیول، کہ یہ جو ہے راستہ اس کا لیول نہیں ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کون بارریرا ہے اس کا اس طرح کا نشان ہوگا. آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، جب بھی پھاٹک والا کوئی آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں یہ آ جائے گا. اور اگر وہاں پر ذکر ہو گیا دس نیول کا تو وہ اس طرح کا نشان ہوگا کہ یہاں پر اس کا لیول ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں پر پوینتے موول ہے آپ کو واضح یہاں پر سامنے دکھائی دے رہا ہے. جی دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا جو پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا. رب رکھا، اللہ نگہبان.